Good afternoon. Yesterday we have studied about valence bond theory (BBT), and now we will start with new topic, orbital concept of covalent bond. So let's आपका मैम start. वीडियो ऑफ है. Okay, ma'am. Yes, ma'am. So let's start with a new topic, orbital concept of covalent bond. Orbital concept of covalent bond, in which we'll discuss about bonding or type of bonding or overlapping of atomic orbitals with opposite spins. Okay, students? Orbital concept of covalent bonding, we'll discussing about the overlapping of atomic orbitals with opposite spins. Suppose that अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम है या कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप बता दीजिएगा, मैं उसको और इजी वे में एक्सप्लेन कर सकती हूँ. ठीक है बच्चे? ठीक है. तो इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2 molecule, H2 molecule, that means two hydrogen atoms come closer and their atomic orbitals are overlapped and formation of hydrogen molecules. Okay, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म कब होता है? जब दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के पास आते हैं, कम क्लोजर टू ईच अदर, but with opposite spins. Why with opposite spins? As we know, hydrogen, the electronic configuration of hydrogen, student, 1s1 for each hydrogen atom. So orbital diagram is this. Okay. So according to Pauli's exclusive principle, do you know Pauli's exclusive principle? We studied about Pauli's exclusive principle in structure of atom chapter, second unit. Anyone? किसी को याद है बच्चे? Pauli's exclusive principle second chapter में हम लोगों ने पढ़ा था. No one. No Okay, two no electrons can have same set of 4 quantum numbers. Tanvi? Yes, ma'am. No two electrons can have same set of 4 quantum numbers. Okay. And another form of this principle is, in other words, Ma'am, in one orbital only 2 electrons of opposite spins can be possible. Yes, with minimum force of repulsion. Very good. So no orbital, किसी भी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बेटा? 2. लेकिन उन 2 इलेक्ट्रॉन्स में दोनों ही सेम स्पिन नहीं हो सकते हैं. दोनों का स्पिन जो होता है, डायरेक्शन जो होता है, वो बेटा क्या होता है? अपोजिट होता है. फर्स्ट थिंग इज दैट विद अपोजिट स्पिन. Second thing is that with the minimum repulsion, with minimum force of repulsion. Okay students, तो minimum force of repulsion के साथ किसी भी atomic orbital में maximum 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस करते हैं. ये Pauli's exclusive principle है. तो ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट इसी चीज को इस तरह शो करता है कि ये आपका मालूम है S जो होता है उसका शेप होता है बेटा स्फेरिकल. तो ये आपका न्यूक्लियस, इसमें मान लीजिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये हमारा क्लॉकवाइज है. ठीक है. अब ये हमने सेकेंड हाइड्रोजन है, ये पॉजिटिव शोज न्यूक्लियस. ये हमारा कैसा है बेटा? विद अपोजिट स्पिन. तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप्ड होते हैं स्टूडेंट्स, ये इस तरह, ये हमारा न्यूक्लियस अभी भी दोनों का सेंटर्स में है. ये इस तरह से ये हमारा क्या हो जाता है?
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, इसको ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट कहते हैं। टू रिप्रेजेंट इट इन अ वेरी इजी वे, इसको एक बहुत ही इजी वे में अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दोनों हाइड्रोजन एटम जो हैं वो दोनों अपना पैरेलल स्पिन्स में है, लेकिन जब वो एक दूसरे के पास आते हैं तब क्या हो जाता है, इसका स्पिन जो है वो अपोजिट हो जाता है। तो जब अपोजिट स्पिन हो जाता है तब जो रिजल्टेंट बचता है H2, ये 1 और 2 लिखा है, दैट मीन्स फर्स्ट हाइड्रोजन और सेकेंड हाइड्रोजन। इससे आप कंफ्यूज हो रहे होगे तो केवल H एटम लिख दीजिए, एटम। और यहाँ पर क्या बन गया बेटा, मॉलिक्यूल। इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1, but for this configuration is 1s2. Any confusion, students? Any confusion to anyone? No. So let's move with next topic, the very important topic, types of orbital overlapping. This is overlapping, and next topic is types of overlapping. Types of orbital overlapping. देखिए बेटा, on the basis of overlapping, on the basis of overlapping, overlapping are two types. First is axial overlapping and second is lateral और sidewise overlapping. Okay student, देखिए इसमें एक वर्ड हिडन है, एक्सियल ओवरलैपिंग। सो इन एक्सियल ओवरलैपिंग कोई वर्ड आपको दिख रहा है? एक्सिस वर्ड सुना है आपने, सेंटर टू सेंटर सुना है आप लोगों ने बेटा? नहीं सुना है, कोई बात नहीं। चलिए उससे पहले एनीवन कोई मुझे शेप बता सकता है एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के, जिसको याद हो? एनीवन? एस का स्फेरिकल, पी का डंबल। ओके ओके, तो फॉर एस स्फेरिकल शेप एंड फॉर पी डंबल शेप। आपके में जो टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग है स्टूडेंट्स, वो एस और पी सिर्फ दो ही कैटेगरी में है। अच्छा अब जरा शेप्स देखते हैं। एस का शेप होता है स्फेरिकल, पी में देखिए आपको याद होगा अगर किसी को, तो पी में आपको 3 ऑर्बिटल्स होते थे पी सबशेल में, पी एक्स वाई, पी वाई, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, एक्स वाई एंड जेड। अगर इनके बेटा हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं तो देखिए पी एक्स एंड पी वाई दोनों का ये शेप होता है ऑर्बिटल डायग्राम को जो हम लोग शो कर रहे हैं। और पी जेड का जो होता है वो इस तरह का शेप होता है। अब बेटा हम ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये हमारा s ऑर्बिटल हो गया। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, टोटल टाइप ऑफ ओवरलैपिंग कैन बी पॉसिबल? देखिए फर्स्ट ओवरलैपिंग इज पॉसिबल एस एस, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग मैंने बोला एस एस ओवरलैपिंग, फर्स्ट टाइप में हो गया एस एस ओवरलैपिंग। सेकेंड टाइप क्या हो सकता है? 1s और 1p। अभी मैं यहाँ स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ p, उसका रीजन बता रही हूँ। एंड सेकेंड टाइप इज p ओवरलैपिंग, है ना बच्चे। अब मुझे ये बताइए कि अगर ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है या वर्टिकल फॉर्म में है तो कौन सा इजी है इन दोनों में? एक्स वाई जेड, ये शेप यही रहेंगे इन दोनों में से। यस यस बेटा, यस Z is here. Ma'am, Z is here. यस। वाई?
वो हॉरिजॉन्टल में है तो वो इजीली कर लेगा। हाँ देखिए, हमारी जो फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ नोड्स पर 0 होती है। यहाँ नोड्स पर ये जो नोडल जोन होता है इस पर क्या होती है, 0। जब हम S को ओवरलैप करेंगे तो मैक्सिमाइज पोर्शन जो है वो यही ओवरलैप होगा। तो ऐसी जगह ओवरलैपिंग होगी जहां इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ही 0 है बच्चे। तो ये ओवरलैपिंग तो वैसे ही पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है ना, X और Y। अब हमारा P में और कौन सा है हमारा ऑर्बिटल, एक है PZ। तो अब जरा इनके शेप्स देखते हैं और समझते हैं। अगर SS ओवरलैपिंग है स्टूडेंट्स, तो देखिए SS का वैसे हम लोग शो कर चुके हैं, बट फिर भी SS में ओवरलैपिंग इस तरह से हो जाती है। इसको मैं न्यूक्लियस को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो ये ओवरलैप पोर्शन हो गया। S और P है, बहुत सारे बुक्स हैं जिसमें केवल P मेंशन होगा, बट आप लोग PZ लिखा करिए और यहाँ PX और PY लिखा करिए। 12th क्लास बोर्ड में भी यही आपको मेंशन करने होते हैं, XYZ। केवल P आप मेंशन नहीं करेंगे। मे भी शायद NCERT में भी P लिखा है स्टार्टिंग में, पर बाद में उसे मेंशन किया गया है। तो S और PZ की अगर बात कर रहे हो तो देखिए शेप इस तरह बनेगा, ठीक। इसका सेंटर अभी भी ये है, ये ओवरलैपिंग हो गया। अब बात आ रही है PP की, तो PX और PY मैंने जो मेंशन किया है वो तो ये हो गया, ये ओवरलैप्ड पोर्शन हो गया। एक और बॉन्डिंग बन सकती है PZ और PZ, ये वाला, ठीक है बच्चे। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को? नो मैम। ओके, तो इट्स, अब जरा देखते हैं बेटा। एक्सियल ओवरलैपिंग इज एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग, मैक्सिमम ओवरलैपिंग, और लेटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग इज मिनिमम ओवरलैपिंग, ठीक है। अब इन दोनों में ये जो मैंने आपको टाइप्स बताए, इनमें अब आप मुझे क्या इनमें कैटेगराइज करके बता सकते हैं, फिर मैं खुद से बता दूंगी, बट अभी आप बता सकते हो कि एक्सियल और साइड वाइज में SS कौन से टाइप में जाएगा, एक्सियल या फिर लेटरल में? SS एक्सियल। SS हो गया एक्सियल, ओके। S और PZ किस में होगा? एक्सियल। एक्सियल। PX PY किस में होगा? लेटरल। लेटरल। अब ये वाला आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि सीक्वेंस से लिखे होंगे, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चे। रुको, PZ ये आपका हॉरिजॉन्टल हो रहा है या, हाँ बताइए क्या? एक्सियल। एक्सियल, वेरी गुड, एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। एक्सियल में आपके 3 टाइप का ओवरलैपिंग हो गया, SS ओवरलैपिंग, SP और PP यानी PZ, ठीक है। ये तो एक्सियल ओवरलैपिंग हो गया। लेटरल ओवरलैपिंग में सिर्फ एक ही तरह का ओवरलैपिंग होता है, PX और PY ओवरलैपिंग, ठीक है बेटा। तो अब इनको नेम्स क्या दिए गए हैं, जो 2 टाइप्स का है, तो एक्सियल ओवरलैपिंग में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको बेटा हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और जो हमारा लेटरल ओवरलैपिंग में होता है उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। हाँ, सिग्मा बॉन्ड को ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिग्मा, और इसको पाई बॉन्ड, पाई को पाई की तरह ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो आप लोगों ने पहले मैथ्स में भी शायद पढ़ा होगा, पाई बॉन्ड। तो एक्सियल ओवरलैपिंग जो होता है बेटा वो कैसी होती है, इंटर न्यूक्लियर बॉन्डिंग होती है, इसलिए ये स्टेबल भी होती है एज कंपेयर टू लेटरल ओवरलैपिंग। मैक्सिमम ओवरलैपिंग भी होती है, इन दोनों में ये डिफरेंस है। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, लेकिन ये तो हो गया 2 मार्क का एक क्वेश्चन।
जो सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, या व्हाट टाइप ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग प्रेजेंट इन अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल, तो आपने सिग्मा एंड पाई लिख के उसको एक्सप्लेन कर दिया। बट 12th क्लास में तो रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, वो मैं अभी पूछूंगी। उससे पहले तो जरा ये समझते हैं आप लोगों को, सिग्मा बॉन्ड जो होता है, सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड फॉर सिंगल बॉन्ड ओनली, यानी एक्सियल ओवरलैपिंग या जिसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं स्टूडेंट्स, वो केवल सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली सिंगल बॉन्ड। और जो पाई बॉन्ड है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड मैंने वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि आपको मालूम है आपने 3 टाइप की ही बॉन्डिंग पढ़ी है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो सिंगल, डबल और ट्रिपल में सिंगल बॉन्ड को तो आपका सिग्मा बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, रेस्ट ऑफ डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड को कौन रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स, पाई बॉन्ड। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को बेटा? इसमें कोई कंफ्यूजन है बच्चे? नो मैम। अच्छा, अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या आप मुझे वो बता सकते हैं, यस और नो? यस मैम। तो चलिए, प्राची और अनुराग ने बोला है तो पहले मैं अनुराग से ही पूछती हूँ। सो अनुराग, विच टाइप ऑफ बॉन्ड present between chlorine molecule? Chlorine molecules means student Cl2. Cl2 में किस टाइप की बॉन्डिंग प्रेजेंट है, सिग्मा, पाई? आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, नॉट इट्स नेसेसरी अबाउट एक्सियल और लेटरल और sp pp, no, only sigma or pi. Which type of bonding? I am not just talking about overlapping. Which type of bond present between Cl2? सिग्मा। अब यहाँ पर Cl2 का सिग्मा मतलब है बॉन्ड। Cl और Cl के बीच। यस, सिग्मा। अगर आपको याद होगा सिग्मा तो बॉन्ड। Cl के स्ट्रक्चर में Cl सिंगल बॉन्ड Cl होता है बेटा, एंड सिंगल बॉन्ड में हम कौन सी बॉन्डिंग यूज करते हैं बेटा जी, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। वेरी गुड। अब यही क्वेश्चन एक बार बोर्ड में अगर ये आ गया तो नेक्स्ट टाइम ये आएगा, हाउ मेनी सिग्मा और पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन Cl2 molecule? Then what's the answer? How many sigma and pi bond present in chlorine molecule? 1 sigma and no One pi. sigma, 0 pi. Very good. One sigma, Very 0 pi. good. Very good. Very good. Now, if we talking about oxygen molecule, O2. O2. One sigma, one pi. One sigma, 1 pi. 1 sigma, 1 pi. Very good. 1 sigma, 1 pi. ठीक, अब उसके बाद अगर नाइट्रोजन बोला है स्टूडेंट्स, फिर 1 सिग्मा। One sigma, 2. वेरी गुड। देखिए पहले मुझे ये बताइए, कोई भी एक स्टूडेंट इसका आंसर देना कि बेटा पहले सिंगल बॉन्ड बनता है या डबल ट्रिपल बन जाते हैं? सिंगल पहले बॉन्ड। सिंगल बनता है। That means कि सिग्मा ऑलवेज जो सबसे बॉटम में होता है हम उसको मेंशन करते हैं सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा से ही नेम पता चलता है सिंगल और सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड पहले फॉर्म हो रहा है क्योंकि जब तक एक लाइन आप नहीं खींचेंगे आप ये नहीं कह सकते हो ये डबल लाइन हो गई है ना। आपने एक लाइन खींची, आप नहीं कहोगे ये डबल लाइन है। डबल लाइन इसको बोलोगे जो पहले से एक लाइन है उसके बाद अगर ओवरलैपिंग हो रही है तब उसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है ना बेटा? ठीक है ना बेटा? यस मैम। अच्छा, अब बेटा मेरा क्वेश्चन, अब जो रीजनिंग क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि सिग्मा बॉन्ड कैन फॉर्म विदाउट पाई बॉन्ड, बट इन दैट केस यहाँ आप देख रहे हैं सिग्मा बॉन्ड कैन फॉर्म विदाउट फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड बट नॉट पॉसिबल फॉर वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स मतलब पहले सिग्मा मतलब पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। यस, दैट मीन्स कि पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा की एब्सेंस में कभी भी फॉर्म नहीं होता है। Why pi bond cannot form?
मैम मैं बताऊं? कोई भी, यस बताइए। मैम जब भी कोई दो एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो वो हर समय पहले सिंगल बॉन्ड बनता है, इस वजह से। और जो पाई होता मतलब वो सिग्मा होता है वो सिंगल बॉन्ड के बीच में बनता है, इस वजह से जो सिग्मा पहले आता है फिर पाई बाद में। हाँ वही बात आ गई, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग जब तक नहीं होती है तब तक लेटरल ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही आपने कहा। तो फर्स्ट एक्सियल ओवरलैपिंग और सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, देन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। कोई कंफ्यूजन है किसी को इसमें बेटा? नो मैम। वेरी गुड। सो अगर बेटा जी ये पूछा गया इसमें सेकेंड रीजनिंग क्वेश्चन कि आपको मैंने ये बहुत सारे यहाँ टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स ये दे रखे हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन तो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, अब मुझे वही टॉपिक दिया गया है लेकिन मुझे क्वेश्चन चेंज करके देना है बच्चों को, ठीक है। तो अब मैंने कहा अरेंज ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग इन देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वो आपके ऊपर है वो क्या पूछते हैं। इंक्रीजिंग कर सकते हैं अभी या डिक्रीजिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक। पहले मैंने कहा कि सिग्मा में ऑलरेडी 3 टाइप्स के आपको दिख रहे हैं, पाई तो बेचारा अलग ही हो गया तो वो तो लास्ट में ही हो जाएगा क्योंकि सिग्मा में ग्रेटर एक्सटेंट होता है एज कंपेयर टू पाई। तो अगर मैं पाई को एक्सक्लूड कर दूं, सिग्मा में आपको 3 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग दिख रही है बेटा जी, ठीक। तो अब मुझे आप ये बता सकते हो कि इसमें सबसे ज्यादा यानी कि व्हाट रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो मैक्सिमम किस में होगी इन एक्सियल। देखिए मैं आपको ए बी सी लिखती हूँ, ए बी और सी। मैंने पाई बॉन्ड को एक्सक्लूड किया है क्योंकि वो वैसे भी मिनिमाइज है, तो इसलिए वो तो 4th पोजीशन ऑप्ट करेगा ही करेगा। अगर आप इसमें भी करना चाहते हो, चारों में करना चाहते हो तो ए बी सी डी हो गया। तो अब आपको सीक्वेंस आप बताइए मुझे। नहीं ए बी सी डी, नहीं सॉरी, एक मिनट, ए बी सी बी। आप बोलिए। A B D C। ए बी डी सी। बी। Yes ma'am। अच्छा अब इसमें से अनुराग, यस मैम। रिलेटिव स्ट्रेंथ के बेस पर आपको अरेंज करना है बच्चे, तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम किसका होगा? मैक्सिमम px py और मिनिमम ss। हाँ स्ट्रॉन्गर किसमें बॉन्ड किसका इंक्रीजिंग? होगा? रिलेटिव Stronger- अच्छा इंक्रीजिंग नहीं मैक्सिमम बोल रहे हो ना बच्चे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वर्ड ही आपने कहाँ यूज किया? आपने बोल दिया मैक्सिमम px py, तो मैक्सिमम नहीं इसमें मिनिमम होता है। यस मैम सॉरी, हाँ वो वो थोड़ा तो फिर कंफ्यूजन पूरा हो गया आपने, था। हाँ बच्चे वो पूरा चेंज हो गया, 0 मिल जाएगा सीधे की जगह आपने अपोजिट को। और बेटर ऑप्शन ये होता है कि अगर आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में कंफ्यूजन है, और होता ही है पता नहीं क्यों होता है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि 12th में अभी भी आपको साइंस लगाने में, मतलब आप अरेंज बिल्कुल सही ऑर्डर से करते हो, बट 12th क्लास के स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ कि वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के साइन अभी भी सही नहीं लगाते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में आपको 12th क्लास की बात बता रही हूँ, बोर्ड एग्जाम में आपको ये फ्री हैंड होता है कि अगर आपने सही से अरेंज कर दिए हैं बेटा, तो उसके बाद आपको अगर ये आप ये कहना चाहते हो कि इसमें मैक्सिमम ओवरलैपिंग है, तो आप इसके नीचे लिख दीजिए मैक्सिमम ओवरलैपिंग और इसके नीचे लिख दीजिए मिनिमम ओवरलैपिंग। अगर आपने साइन नहीं भी किए हैं बच्चा, अगर आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग साइन नहीं भी लगाए हैं, या आपने इंक्रीजिंग को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है और एग्जामिनर ने कहा कि अपने आप ही ऑर्डर गलत है, अगर आपने मैक्सिमम और मिनिमम लिखा है बच्चे, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क, उसमें आपका एक भी मार्क्स डिटेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको 0.5% भी कंफ्यूजन हो रहा है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में, तो ये आप अभी से प्रैक्टिस करिए 11 से ही, तब जाके आप 12th में इस चीज को कर पाएंगे, ठीक है बच्चे? ठीक है एक्सक्यूज हाँ बेटा बोलिए। मैम, जैसे अभी आपने पूछा था किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो मैम हमने वो ऑर्डर बता दिया मैम, अगर उसका रीजन आता है तो क्या लिखेंगे?
हाँ वही मैं पूछने जा रही थी. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, बट इसमें बेटा तो ये तो बहुत ही इजी है. इन डायग्राम्स को देखिए, एक्सिस टू एक्सिस अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो स्फेरिकल जो है, दो क्वाइंस को अगर एक साथ रखोगे बेटा तो वो ज्यादा मैक्सिमाइज ओवरलैप्ड होगा, या फिर आपने एक इस तरह का शेप डंबल और एक सर्किल को रखोगे तब होगा? मैम स्फेरिकल वाला होगा. मैम दो स्फीयर Yes. रखेंगे तब होगा. हाँ लेकिन बेटा आपको ये लिखना नहीं है स्फीयर, और ये तो हम लोगों ने सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला है. आपको सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम एक्सियल ओवरलैपिंग इन एस ऑर्बिटल विथ सिमिलर शेप स्फेरिकल, बस, या सिमिलर स्फेरिकल शेप, बस. आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना होता है इन टेक्निकल टर्म्स को केमिस्ट्री में. ठीक है बेटा? ओके मैम. और यही बात आप लोग 12th में भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स प्लीज. ठीक है? और एक बार अब जो एसेशन रीजन आने लगे हैं उनमें ये पूछा जाता है बेटा कि जब आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मैं एक स्टेटमेंट बोल रही हूँ, इज इट करेक्ट और नॉट, ट्रू और फॉल्स करके है. बट असर्शन रीजन में आप लोग जानते हो कि उसके ऑप्शंस अलग होते हैं. असर्शन रीजन में होता है असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, बट एट दैट टाइम मैं एक स्टेटमेंट बोल रही हूँ, उसको आपको बताना है इज इट ट्रू और फॉल्स. ओके स्टूडेंट्स? सो हियर वी गो. अ सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड when two half-filled orbitals belonging to bonding atoms overlap along their internuclear axis. नहीं समझ में आया, फिर से बोल रही हूँ. A sigma bond is formed when two half-filled atomic orbitals belonging to bonding atoms overlap along their internuclear axis. ट्रू होगा. ट्रू होगा. किसने बोला? मैम ट्रू. हाँ जी बेटा बोलिए. ट्रू. मैम ट्रू. वेरी गुड, वेरी गुड. यहाँ पर बेटा आपको इस टर्म को कोई समझने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी? बिलोंगिंग टू बॉन्डिंग एटम्स, ये वर्ड तो प्रॉब्लम नहीं आपको क्रिएट किया था? नो मैम. यस. देखिए बच्चे, इसमें ये डेफिनेशन ये कह रही थी कि सिग्मा बॉन्ड क्या केवल तभी बनता है जब दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं बिलोंगिंग टू बॉन्डिंग एटम, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन बिलोंगिंग टू बॉन्डिंग एटम्स ओवरलैप along their internuclear axis. ये मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है, और न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस ओवरलैपिंग भी इसको कहते हैं. ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? यस मैम. ओके मैम. लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि हम इसको डायग्रामेटिकली पूरा यहाँ तक शो क्यों नहीं करते हैं? उसका रीजन ये होता है कि इट्स नॉट पॉसिबल कि आप न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स को ओवरलैप्ड कर दो. इसलिए न्यूक्लियस के मैक्सिमम पोर्शन, मतलब न्यूक्लियस के बिल्कुल पास तक, जहां तक इसका अट्रैक्शन न्यूक्लियर चार्ज लगता है, वहां तक आप इन लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो, न्यूक्लियस से पहले तक. क्योंकि न्यूक्लियस तक अगर आपने लाइन ड्रॉ कर दिया है तो दैट मीन्स कि दीज इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन न्यूक्लियस, तो वो न्यूक्लियस में प्लेस कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये आप भी जानते हो, है ना बेटा? इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है आपको स्टूडेंट्स? नो मैम. अच्छा चलिए, अब बहुत सारी आपने इसमें पॉइंट्स को समझ लिया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स लेट्स डिस्कस डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. वन पॉइंट फ्रॉम ईच स्टूडेंट. कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसको एक एक पॉइंट बताना है. आप वो पॉइंट कितना भी छोटा भी हो सकता है, ये नहीं सोचिए कि अरे ये डिफरेंस नहीं होगा. आपको जो भी आ रहा है आप वो बता सकते हो. अब मैं इसको हाइड कर रही हूँ जिससे आपको कोई भी बिल्कुल हिंट ना मिले. मैम डिफरेंस बिटवीन सिग्मा और पाई बॉन्ड बताना है. यस बच्चे, बस एक स्टूडेंट एक पॉइंट बताएगा.
sigma Ma'am, bond is for single bond and pi नहीं नहीं bond नहीं, is for वन बाय multiple वन bonds. पहले अनुराग बता रहा है. यस अनुराग. Ma'am, sigma bond is for single bond and pi bond is for multiple bonds. Okay. Next. Kanishka. Kanishka. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Kanishka. Yes, Kanishka beta. Ma'am, this bond is formed, sigma bond का ma'am, this bond is formed by the axial overlap of atomic orbitals. Yes, very good. और ma'am, pi bond का the bond is formed by sidewise overlapping of atomic orbital. What's the other name of sidewise overlapping, Kanishka? Yes, ma'am. Sidewise overlapping is all. Sidewise overlapping को और क्या कह सकते हैं बेटा? Sidewise overlapping को कोई बात नहीं है, कनिष्का ने बता दिया, कोई और बताएगा. वैश, ये कौन है? वैश ठीक है. प्राची. यस बच्चे. Ma'am, sigma bond can formed alone, whereas pi bond can formed with sigma bond only. Okay, very good, very good. Next. और बच्चे? तन्वी. Ma'am, sigma bond is formed between SS, SP or P orbitals, but pi bond can be formed between px and py orbitals only. तन्वी, something is missing at this point. कुछ missing है जो मैंने बोला था, बुक्स में नहीं है. बुक से बोल रही है तन्वी? No ma'am, आपने बोला था pxy लगाना जरूरी है. हाँ, ये yes yes yes, very good, very good तन्वी. spz. बिल्कुल सही. excuse me, ma'am. yes yes बेटा. शो नहीं हो रहा है. तनिष्का बेटा आपने तो बता दिया है. नेक्स्ट आदित्य सिंह. यस तनिष्का, एनी कंफ्यूजन? Excuse me, ma'am. हाँ जी बच्चे बोलो कनिष्का. मैम साइडवाइज को मैम लेटरल कहते हैं. अरे वेरी गुड, वेरी गुड. तो बेटा आपने अभी सुना नहीं था, अभी मुझे लग रहा है बुक से आपने देखकर बताया है कनिष्का. मैम अभी मैम बुक से ही देखा है मैंने. ये तो गलत बात है, आपने नोट नहीं किया. साथ साथ आपको नोट करना चाहिए था. बट कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट टाइम आप साथ साथ करेंगे तो आपको बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, वेरी गुड Yes. कनिष्का बच्ची, वेरी गुड. ओके, आयु